Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss the main topic of file handling, that is, what is the difference between R plus and W plus mode. अब आपको ये मोड्स देखकर ही पता लग गया होगा कि इसमें B तो नहीं है. That means these modes are for text file only. जो आपके बेसिक जो 3 मोड्स हैं, रीड, राइट एंड अपेंड, for this I have already made the video in detail even. I will provide you the link of that in my description box also. But here in this video we will discuss practically what is the difference between R plus and W plus mode. So let's start. The basic similarity between these two modes is that R plus mode is used for both reading as well as writing, and W plus mode is also used for both reading and writing. ये भी आपका reading और writing purpose के लिए use होगा, and W plus mode will also be used for both reading and writing. ठीक है? कई जगहों पर even some students have asked from me कि R plus mode is used means first to read and then write, and W plus mode we can first write and then read. We can even read from that also, but it will not show anything. I will show you practically also. And second difference is the main difference, you can say. अगर ये difference clear हो गया तो आपको R plus और W plus mode एकदम clear है. In R plus mode, the file pointer is at the beginning of the file. Suppose this is my file. यहाँ पर आपका कुछ text written है. तो अगर मैं उस फाइल को R plus मोड में ओपन करा है, तो that means मेरा पॉइंटर कहाँ पर है? बिगिनिंग पर. बट इफ आई हैव ओपन द सेम फाइल इन W plus मोड, तो मेरा पॉइंटर कहाँ पर होगा? एंड पर. ये चीज आपने ध्यान रखनी है. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन. इन R plus मोड माई फाइल पॉइंटर इज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, whereas in W plus mode file pointer is at the end of the file. Now next difference, if the file does not exist, it will display the file not found error. This is same as that of R mode, and whereas in case of W plus mode, if the file does not exist, it will create the new file, and if in case of R plus mode, if the file exists, it does not show any error, it will perform that particular operations. And in case of W plus mode, if the file exists, it will overwrite the data in the file. Overwrite क्यों? क्योंकि मेरा pointer कहाँ पर होगा? End पर. Let me just show you this practically even. As you can see, I have opened my Python in script mode. The very first thing we will do, we will open the file, and the name of the file which we will work upon is random.txt. अगर हम इसको W मोड में ओपन करें, ठीक है, और इसको मैं क्या कर देते हैं, लेट सपोज एक फाइल ही क्रिएट कर देते हैं. लेट मी जस्ट क्रिएट इट ऑन द डेस्कटॉप. राइट क्लिक एंड देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एंड द नेम ऑफ दिस फाइल इज random.txt. इस पर हम लोग वर्क करेंगे. और लेट मी जस्ट राइट द टेक्स्ट हियर. लेट सपोज आई एम राइटिंग पाइथन प्रोग्रामिंग. ज्यादा बड़ा टेक्स्ट नहीं लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. एंड लेट मी जस्ट इंक्रीज इट साइज. इट्स फाइन नाउ. ठीक है, और इसका पाथ अगर मुझे चेक करना हो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, दिस इज द पाथ. ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, एंड देन हियर आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस. ठीक है, यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, तो इट विल बी टेकन एज इट इज. अब R प्लस और W प्लस से पहले सिंपल हम R मोड यूज करेंगे. ठीक है, प्रिंट f डॉट रीड. व्हाट दिस फंक्शन विल डू नाउ, इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस. यही डेटा मेरी फाइल में ऑलरेडी है. अगर मैं वहां पर कोई ऐसी फाइल का नेम लिख दूं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, let's suppose random1.txt, this file is not here on the desktop, so I will get the error, and the name of that error is
फाइल नॉट फाउंड एरर. ठीक है, same concept is applied on the R plus and W plus mode also, where when the file exists and when the file does not exist. If I will write W here, अब फाइल का नेम कर देते हैं random.txt. ठीक है, अब मुझे फाइल में डेटा को राइट कराना है. Let's suppose I am writing the text ABC. अब random.txt से ऑलरेडी मेरे पास फाइल है और इसमें टेक्स्ट क्या है बेटा, पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब फाइल में डेटा राइट हो गया और क्या डेटा है, एबीसी. अब वो पाइथन प्रोग्रामिंग जो पहले था वो मेरा क्या हो गया, ओवरराइट हो गया. ठीक है, अब इसको हम एक बार वापस से चेंज कर देते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग. आई हैव सेव्ड दिस फाइल. और इन केस अगर मैं यहाँ पर ऐसी फाइल का नेम लिखूं जो मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही. ठीक है, अब सपोज यहाँ पर मैंने आई एम प्रिंटिंग माय नेम, लेट्स सपोज स्वाति. ठीक है, तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल क्रिएट दैट फाइल. ठीक है, एरर नहीं शो करेगा, इट विल क्रिएट दैट फाइल विद द नेम एंड राइट द कंटेंट इन दैट. ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करा बेटा आपको, जो हमारा लास्ट डिफरेंस था, लास्ट टू डिफरेंस, इफ द फाइल एग्जिस्ट एंड इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. दिस विल बी एप्लीकेबल इन इवन RB plus and WB plus mode also, जहां पर भी R और W आ जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, इन केस ऑफ R mode it will read the data. If the file does not exist, then it will show you the file not found error. Whereas in case of writing the mode, writing the data in W mode, it can be your W, W plus and even WB plus. If the file exists, it will overwrite the data, and if the file does not exist, then it will create the file with that name. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है. अब हम आते हैं अपना जो मेन हमारा है R प्लस और W प्लस मोड. नाउ सी बेटा, फाइल का नेम मैंने कर दिया, लेट्स सपोज random.txt. अब मैंने इसको ओपन करा R प्लस मोड में. दैट मीन्स वी कैन रीड द डेटा एज वेल एज वी कैन राइट द डेटा. ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना कि पहले रीड होगा फिर राइट होगा, या W प्लस में पहले राइट होगा फिर रीड होगा. दैट इज अ सेपरेट केस कि अगर मैं W प्लस मोड में पहले रीड करूंगी तो मुझे कुछ शो नहीं होगा. ठीक है, अभी वो एक्सप्लेन करेंगे. पहले हम करते हैं R प्लस मोड, और मेरी फाइल का नेम क्या है बेटा, random.txt. इसको डिलीट कर देते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन. दिस इज माई फाइल एंड दिस इज द डेटा. ठीक है, अब देखो जो मैंने ये चीज बोली थी, R प्लस मोड में आपका पॉइंटर कहां पर है, बिगिनिंग पर. ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से डेटा को रीड कर रही हूँ, प्रिंट f.read, रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. R प्लस मोड है, वी कैन रीड द डेटा एज वेल एज वी कैन राइट द डेटा. अब मेरा पॉइंटर कहां पर है बेटा, बिगिनिंग पर. लेट मी शो यू दैट फाइल. ठीक है, हम R प्लस मोड पे वर्क कर रहे हैं, तो मेरा पॉइंटर कहां पर है, बिगिनिंग पर. ठीक है, तो अब अगर मैं अपना रीड फंक्शन लगाऊंगी तो व्हाट इट विल डू, इट विल रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल. तो व्हाट इट विल प्रिंट, सिंपली पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस. अब इसने इसको रीड कर दिया. अब मैं इसमें डेटा राइट भी करा सकती हूँ. ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, अब मैंने यहाँ पर लिखा f.write. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग ABC. ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको फाइल को ओपन करते हैं, random.txt. अब ध्यान से देखना बेटा, पहले हमने क्या करा, f.read. तो व्हाट इट विल डू, इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. अब आफ्टर रीडिंग द डेटा मेरा पॉइंटर कहां पर है, यहाँ पर. ठीक है, अब मैंने क्या करा, f.write ABC. तो वो यहाँ पर क्या ऐड कर देगा बेटा, ABC. ठीक है, वो फाइल में ऐड कर देगा उसको. अब अगर मैं इसके बाद रीड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो क्या वो मुझे कोई डेटा डिस्प्ले करेगा, नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, और रीड फंक्शन क्या करेगा, जहां पर मेरा पॉइंटर है उसके बाद मेरे डेटा को रीड करेगा. ठीक है, तो अब ये फाइल में तो मेरा इतना डेटा आ जाएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग और ABC.
और इस राइट स्टेटमेंट फंक्शन के बाद अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो वो प्रिंट नहीं होगा, ब्लैंक आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मुझे फाइल में डेटा राइट कराने के बाद कंप्लीट स्ट्रिंग रीड करनी हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये चीज देखते हैं। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, अब मैंने ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग है ये तो मेरा उसने रीड करा बेटा यहाँ से, जब मैंने यहाँ पर रीड फंक्शन लगाया। ठीक है, बट मैंने f.write abc लिखा, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर मेरा पॉइंटर था, अब उसने फाइल में abc राइट कर दिया। ठीक है, अब देखो एक बार इसको इरेज कर देते हैं बिकॉज आई विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अगेन। तो वो डबल टाइम्स abc हो जाएगा तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, प्रिंट f.read। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरा पॉइंटर कहां पर होगा जब मैं फाइल को r+ मोड में ओपन करूंगी तो बिगिनिंग में। रीड फंक्शन से वो पाइथन प्रोग्रामिंग को रीड कर देगा। ठीक है, अब abc लिखने के बाद मेरा पॉइंटर कहां पर है, एंड पर। अब मैं दोबारा से रीड फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। रीजन बीइंग दैट बेटा कि जब मैंने फाइल में डेटा को राइट किया तो मेरा पॉइंटर कहां पर आ गया, एंड पर। अब उसके बाद तो मेरी फाइल में डेटा नहीं है। ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब मेरा पॉइंटर यहाँ पर है और मुझे अगर सारी की सारी स्ट्रिंग को रीड करना है आफ्टर इवन राइटिंग द डेटा, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव आवर फाइल पॉइंटर फ्रॉम हियर टू द बिगिनिंग। मुझे अपना पॉइंटर कहाँ पर मूव करना पड़ेगा बेटा, बिगिनिंग पर। और फाइल पॉइंटर मूव करने के लिए विच फंक्शन वी आर हैविंग, सीक फंक्शन। और अगर मैं ब्रैकेट में 0 लिख देती हूँ तो दैट मीन्स इट विल मूव टू द बिगिनिंग। ठीक है, फिर हम अपना डेटा कंप्लीट फाइल को रीड आउट कर सकते हैं। अब लेट मी जस्ट इरेज दिस। अगर इरेज नहीं भी करोगे तो वो आपका abc वो बार बार राइट होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। लेट मी जस्ट सेव द फाइल। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ f.seek 0। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अब मेरा पॉइंटर कहां पर मूव हो गया, बिगिनिंग पर। अब वो अपना डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग ये कौन सा उसने डिस्प्ले किया बेटा, जब मेरी फाइल में डेटा राइट करने से पहले था वो पाइथन प्रोग्रामिंग था। फिर मैंने क्या राइट करा, abc, तो दैट मीन्स अब उसने फाइल में राइट कर दिया। अब मैंने अपना पॉइंटर कहां पर मूव किया बेटा, बिगिनिंग पर। ठीक है, अब बिगिनिंग से मैंने क्या परफॉर्म करा, रीड फंक्शन, तो देन इट मीन्स इट विल रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। आप इवन चाहो तो यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हो जैसे हम यूज करते हैं। तो इट विल रीड द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल। अब अगर मैं इसको हटा दूं और दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो ये क्यों आ रहा है 3 टाइम्स, क्योंकि मैंने इतने टाइम्स फाइल में डेटा जो है राइट करा है। जितनी बार एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार मेरा डेटा राइट हो रहा है। ठीक है, आई होप r+ मोड आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल चेक डू द w+ मोड। नाउ सी बेटा, w+ मोड में मैंने क्या बताया, आपका फाइल पॉइंटर कहां पर होगा, एंड पर। ठीक है, नाउ जस्ट लेट्स ओपन दिस फाइल w+ इन w+ मोड। अब हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, f.read। दैट मीन्स we are going to read the data from the file. Let me just show you the content. This is my, let's just erase this, random.txt file. And when we will open this file in w+ mode, so my pointer will be here at the end. And then I will call this read function. तो इसके बाद कोई भी डेटा नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स इट विल रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, नो आउटपुट। बट अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, अब आपकी फाइल में भी डेटा इरेज हो चुका होगा। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट अगेन। इरेज क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि मैंने उसको किस में ओपन करा, w+ मोड में। दैट मीन्स मुझे कोई डेटा राइट करना है, बट मैंने राइट नहीं किया। ठीक है, तो पिछला कंटेंट वो क्या हो गया, ओवरराइट। दैट्स द रीजन कि आपका जो पिछला कंटेंट है वो इरेज हो गया था। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, बिफोर रीडिंग द फाइल, आई एम मूविंग द फाइल पॉइंटर
to the beginning. ठीक है, now let's see again empty string. अब रीजन ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, लेट मी जस्ट शो यू दिस अगेन. अब इसमें आपका एम्प्टी डेटा है, फाइल भी एम्प्टी है. रीजन बीइंग दैट कि जब मैंने ये चीज लिखी W प्लस मोड में ओपन किया, उसी टाइम पर जो पिछला कंटेंट था वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया. तो उसके बाद भी अगर मैं अपने फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग पर मूव कर रही हूँ तो वो डेटा को रीड नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अब मेरा फाइल में डेटा नहीं है. दिस इज द रीजन कि आप लोग जो पढ़ते हो बुक्स में भी, आप वेरेवर यू हैव फाइंड कि इन W प्लस मोड फर्स्ट वी हैव टू राइट द डेटा, देन वी हैव टू रीड द डेटा. दिस इज द रीजन. ठीक है, नाउ वी विल राइट द डेटा, देन वी विल रीड द डेटा. ठीक है, अगर आपने उसी के आगे करना है तो देन यू कैन यूज अपेंड मोड, ए प्लस मोड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल में डेटा को राइट करेंगे. देयर इज नथिंग इन द फाइल, लेट मी जस्ट शो यू दिस. ठीक है, कुछ नहीं है. इफ यू वांट वी कैन राइट इट आल्सो. पहले हम एम्प्टी के साथ क्रिएट करेंगे, फिर उसके साथ भी करेंगे. f डॉट राइट. अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, लेट्स सपोज ABC, एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग द डेटा. विल इट प्रिंट द डेटा नाउ? आई थिंक आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, अब देखो क्या होगा, फाइल में डेटा मैंने क्या राइट करा, ABC, बट जब मैंने उसको रीड करा वो रीड नहीं कर रहा है. बट अगर आप फाइल चेक करोगे तो उसमें ABC है. ठीक है, अब रीजन बीइंग दैट बेटा कि मेरा फाइल पॉइंटर कहां पर है, एंड पर. अब मुझे उसे कहां पर मूव करना है, बिगिनिंग पर, so that we can read the data from the file. अब इसने डेटा रीड करा ABC, और अब आप देखोगे फाइल में मेरा ABC एक ही बार है, 2 टाइम्स नहीं है. इस बार मैंने इरेज भी नहीं किया जैसे मैंने रीड मोड में किया था. रीजन बीइंग दैट चाहे वो पहले से ABC हो चाहे कुछ भी हो, वो मेरे डेटा को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि मेरा फाइल में डेटा ऑलरेडी है. अभी तो हमने एम्प्टी फाइल के साथ किया था. नाउ लेट्स सपोज मेरी फाइल में क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है. मैंने वही सेम फाइल ओपन करी W प्लस मोड में, और मैंने फाइल में डेटा क्या राइट कर दिया, ABC. फिर मैंने अपना पॉइंटर बिगिनिंग पर मूव करा, और फिर मैंने अपने डेटा को रीड करा. ठीक है, अब भी आपका क्या प्रिंट होगा, ABC. रीजन बीइंग दैट चाहे मेरी फाइल में डेटा हो चाहे मेरी फाइल में डेटा ना हो, अगर मैंने उसको W प्लस मोड में ओपन कर लिया तो दैट मीन्स कि अब जो है वो एग्जिस्टिंग कंटेंट को क्या कर देगा, ओवरराइट, चाहे अपना पॉइंटर मूव करो चाहे ना करो. ठीक है, बट दैट वाज नॉट द केस इन R प्लस मोड. R प्लस मोड में क्या था बेटा कि अगर मैं अपनी फाइल को यहाँ पर R प्लस लिख देती हूँ, मेरा जो कंटेंट था पहले फाइल में वो ओवरराइट नहीं हो रहा. ठीक है, इन केस अगर मैं यहाँ पर अब अपेंड मोड यूज कर देती हूँ, A प्लस मोड, दैट मीन्स जो मेरी फाइल में डेटा है वो तो हो गई, ये अपेंड हो जाएगा, फिर वो उसको रीड करेगा. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट राइट सम कंटेंट हियर इन दिस फाइल. इट्स पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, ये मेरा फाइल में डेटा ऑलरेडी है. अब हमने क्या किया, अपनी फाइल को A प्लस मोड में ओपन कर दिया. दैट मीन्स अब उसके एंड में वो क्या राइट कर देगा, ABC. अब मैंने अपना पॉइंटर सीक 0 से बिगिनिंग पर मूव कर दिया, फिर मैंने अपना रीड फंक्शन कॉल किया, तो इट विल रीड द एंटायर कंटेंट. ठीक है, R प्लस W प्लस के साथ अब हमने A प्लस मोड भी कर लिया है. तो ये आपके तीनों मोड सब विद एग्जाम्पल विद एक्सप्लेनेशन, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. ठीक है, A प्लस मोड में सिंपल क्या होगा कि मेरा पॉइंटर एंड में है, तो जो भी मैं फाइल में डेटा को राइट करूंगी वो आपका एंड में अपेंड हो जाएगा. आफ्टर दैट मैंने अपना पॉइंटर बिगिनिंग में मूव करा, फिर मैंने डेटा को राइट करा. बट ये चीज ध्यान रखना, W प्लस मोड में मेरी फाइल में चाहे डेटा है चाहे नहीं है, वो ओवरराइट हो जाएगा. एग्जिस्टिंग कंटेंट विल इरेज फ्रॉम दैट फाइल, और यहाँ से आप जो भी राइट करोगे वो राइट हो जाएगा, फिर आप उसको वो रीड कर सकते हो. I hope this concept is clear to you now. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है. Do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.